علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ وادی سون میں سیکرٹری ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ستارہ امتیاز ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ خوشاب کے زیر اہتمام ضلع بھر میں انٹرنیشنل فرسٹ ایڈ ویک منایا گیا اور ٹریفک پولیس کے باہمی تعاون سے ریلی کا انعقاد کیا گیا جو ریسکیو آفس سے شروع ہوئی اور نیو لاری اڈے سے ہوتے ہوئے ریسکیو آفس پر اختتام پذیر ہوئی۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو حافظ عبدالرشید نے کہا کہ انٹرنیشنل فرسٹ ایڈ ویک منانے کا مقصد ہر گھر میں فرسٹ ایڈ کے متعلق لوگوں میں شعور و آگاہی پیدا کرنا ہے۔ گمبٹ میں سندھ ہائی کورٹ سکھڑ پنچ کی جانب سے سیم نالوں کے پمپنگ سٹیشنز کو بند کرنے کے حکم کے خلاف گمبٹ کے سینکڑوں شہریوں نے قومی شاہراہ کو دونوں اطراف سے بلاک کر کے شدید احتجاج کیا۔ پمپنگ سٹیشنز احتجاجی دھرنے کے قائدین ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر، مختوم منصور احمد ہاشمی، فوجی عبداللطیف ناریجو، حاجی عبداللطیف شیخ، کامریڈ نثار ابڑو، میاں رازق اور دیگر نے کہا کہ اگر انہیں منتقل نہ کیا گیا تو گمبٹ کے شہر چند گھنٹوں میں زیر آب آ جائیں گے۔ سیم نالوں کا پانی گمبٹ تعلقہ کے سینکڑوں دیہات میں زیر آب آ گیا اور اب کھڑا اور گمبٹ کے شہروں میں سیلاب آ رہا ہے۔ ہزاروں خاندان سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اب شہری اپنی مدد آپ کے تحت روڑی کینال میں پانی نکال رہے تھے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ بیریا روڈ کا تاجر اقبال چوہان ٹریکٹر ٹرالی میں سینکڑوں من کپاس غلہ منڈی لا رہا تھا کہ ریلوے پھاٹے کے قریب سیلابی پانی کے ریلے میں بہنے کے باعث ٹرالی میں موجود سینکڑوں من کپاس پانی کے ریلے میں بہہ گیا۔ 20 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا لیکن ضلع نوشہرہ فروز اور بیریا روڈ کی انتظامیہ بیریا روڈ اور گردنوا میں کھڑے بارش کے پانی کی نکاسی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری طرف تاجر کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تاجر صدمے سے دوچار ہے۔ تاجر اور علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ بیریا روڈ اور گردنواس کے بارش کے کھڑے پانی کو فوری طور پر نکالا جائے۔ کند کوٹ میں کئی دن گزرنے کے باوجود برسات متاثرین کھلے آسمان تلے اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کروڑوں روپے کا سرکاری فنڈ آنے کے باوجود متاثرین تک نہ پہنچ سکا۔ ڈی سی او کشمور 8 کند کوٹ کے اپنے خزانے میں جمع ہونے لگی جس کے باعث متاثرین سخت پریشان ہیں۔ A1 ٹی وی سے بات کرتے ہوئے متاثرین کا کہنا تھا کہ ہفتے سے زائد گزرنے کے باوجود ڈی سی نے ہمیں 1 روپے کا فنڈ بھی نہیں دیا۔ انہوں نے وفاقی حکومت، چیف جسٹس پاکستان اور آرمی چیف اور سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈی سی کشمور 8 کند کوٹ کے خلاف ایکشن لے کر ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ہمیں ریلیف فراہم کیا جائے۔ سرائے مغل کے نوائی علاقہ بونگامالا میں 23 سالہ ارسلان نے 10ویں جماعت کی طالبہ کو گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا، بعد میں خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ روبینہ بی بی نے تھانہ سرائے مغل پولیس کو درخواست دی کہ میرے خاوند کو انتقال ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں، میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ آمنہ بی بی جو 10ویں جماعت کی طالبہ ہے، ارسلان میری بیٹی پر بری نظر رکھتا تھا، میری بیٹی گھر میں موجود تھی اور میں ہمسایہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ارسلان ہمارے گھر آمنہ کو اغوا کی نیت سے داخل ہوا اور آمنہ کو فائر مار کر قتل کر دیا، بعد میں خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ روبینہ بی بی کی درخواست پر تھانہ سرائے مغل پولیس نے مقدمہ درج کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پتو کی منتقل کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں تحصیل پھالیاں سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نعیم عزیز سندھو کی تھانہ پھالیاں میں کھلی کچہری، عوامی مسائل سننے اور موقع پر ان کے حل کے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں گردنوا کے علاقہ کی عوام الناس سے درخواستیں موصول کر کے ان کے حل کے لیے فوری طور پر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور کچھ درخواستوں کو موقع پر حل کر دیا گیا۔ کھلی کچہری کے انعقاد کا بنیادی مقصد پولیس اور عوام کے مابین فاصلوں کو ختم کرنا ہے۔ عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے پولیس اپنے تمام تر وسائل اور اختیارات بروئے کار لا رہی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلوچستان سے آیا سیلاب کا پانی سندھ میں داخل جس نے تباہی مچا دی۔ سیلاب برسات کے پانی سے ضلع دادو کے مہیڑ کے انشاء جوئی سمیت ہزاروں گاؤں ڈوب کر تباہ ہو گئے ہیں۔ منچر جھیل کے پانی کو کرم پور 7 LS سے کر دیا گیا ہے جس سے MNV ڈین اور منجر جھیل کا پانی سندھو دریا میں داخل ہو رہا ہے۔ پانی تیزی سے اپنے راستے جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملاق کی اس رپورٹ میں۔ یہاں 7 کے قریب یہ جو سندھ سرکار کی طرف سے یہاں کٹ لگایا گیا ہے، یہ آپ کو میرا کیمرہ مین دکھائے کہ جو یہ پانی ہے یہ MNV ڈین سے جو 0 پوائنٹ سے 2 کلومیٹر دور جو یہاں شگاف پڑا تھا 200-300 فٹ، تو وہ یہاں پانی بھان سعید آباد سے کراس کر کے یہاں بند پر آ گیا ہے۔ تو یہاں سندھ سرکار نے یہاں کٹ لگایا ہے، تو یہ تیزی سے یہاں کا پانی ابھی
दरिया सिंध में जा रहा है, आप देख रहे हैं। चलो कि ये पानी बलूचिस्तान से एमएनई ड्रेन के ज़रिए यहाँ सिंध में दाखिल हुआ, तो इस पानी ने तबाही बचा दी है। इस पानी की वजह से दादू डिस्ट्रिक्ट के बेहड़, केनशाह, जोही और उसके हज़ारों गांव पानी के नीचे आ गए। तो अभी ये पानी यहाँ से इसका इख्तिताम है। परमपुर का रहायशी हूँ। यहाँ ये मुझे पता है 2010 में भी यहीं से कट लगा था, तो इंशाल्लाह अभी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। आप देख रहे हैं, लाइव मंजर भी देख रहे हैं आप, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। लेकिन पानी बहुत है पीछे, पानी मंसूर झील में बहुत है। 2010 में जो पानी था वो कम था और दरिया में भी कम था, ये पानी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अल्लाह मेहरबानी करे और इंशाल्लाह पीछे अल्लाह करे जो है जितने भी काम वो बच जाएँ। कोशिश है, अभी दूसरा भी कट लगा है, लेकिन अभी थोड़ा वो बड़ा हो जाता तो फिर ज़्यादा पानी निकल रहा है इधर से। पीछे जो भान इफेक्ट हो रहा है वो भी बच जाता है। पानी में बहकर फौत हो गए, मगर बहुत से लोग इस सैलाबी पानी में बहकर फौत हो गए। जो हमको यहाँ जो कैनाल है उनमें इनकी लाशें नज़र आई। तो बहुत तबाही हुई है। करोड़ों अरबों रुपए के लोगों के फसल थे, क्योंकि सिंध के लोगों का गुजर सफ़र दराज पर होता है। तो तकरीबन 50% सिंध तबाह हो गया है, पानी के नीचे आ गया है, बरसात के सैलाब के पानी के नीचे आ गया है। तो जो फसलें थी वो फसलें भी तबाह हो गई, तो लोग बेघर भी हो गए, लोगों के कच्चे घर भी टूट गए। अभी यहाँ बंद के साइड में लगा है, ये साइड में जो गांव है ये आप देख रहे हैं, ये भी इस सैलाबी पानी के नीचे आ गया है। ये जो पानी है ये खारा है, मेरी ड्रेन का है और ये यहाँ पानी पहुँचा है, आप देख रहे हैं ये मनाज़िर। तो ये पानी अभी बंद कादू के कच्चे का इलाका है। और ये जो साइड है आप देख रहे हैं, ये साइड बान फरीदाबाद की साइड है। तो ये देख रहे हैं आप, बहुत से गांव यहाँ पानी के नीचे आ गए हैं सैलाबी पानी में। तो ये अभी पानी बंद से यहाँ लगा है। अभी तक ये मैंने ड्रेन में बताते हैं कि बहुत पानी है, तो उस पानी से पानी वो भी आ रहा है। तो अभी यहाँ बंद को कट लगा कर अभी यहाँ पानी यहाँ से निकाला जाएगा, तो पानी कम होगा और आवाम के दुख दर्द कुछ कम होंगे। सादकाबाद वफाकी वज़ीर मखदूम मुर्तज़ा महमूद की हदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में राशन तकसीम का काम जारी है। 20,000 सैलाब मुतासरीन में राशन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से तकसीम किया जा रहा है। घड़ी, खैर मोहम्मद, जुगपीर, हुसैनाबाद, खड़ोड़ में भी इमदादी सामान पहुँचा दिया गया। राशन के बाद खैमे और मच्छरदानियाँ भिजवाई जा रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जल्द 25,000 फ़ीसद सैलाब मुतासरीन को फराहम किए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि भवाना में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला 11वीं शरीफ मकाम दरबार आलिया कादरिया पीर बुखारी साहब सिद्दीकिया कॉलोनी भवाना शरीफ ज़िला चिन्योड़ पर इनकाद पजीर हुई, जिसकी सरपरस्ती साहबजादा पीर सैयद ताहिर हुसैन शाह बुखारी सजादा नशीन आस्ताना आलिया कादरिया पीर बुखारी साहब सदारा साहबजादा सैयद अतर हुसैन शाह बुखारी साहब ने की। खुसूसी खिताब अलामा मुफ्ती मोहम्मद नवीज़ सुबहानी ने किया। महफिल पाक में तिलावत कुरान और नात शरीफ के बाद मुफ्ती साहब ने शान औलिया पर गुफ्तगू की और इंसानी तर्ज ज़िंदगी को संभालने पर जोर दिया। आखिर में लंगर शरीफ का इंतज़ाम किया गया और साहबजादा गद्दी नशीन ने मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। ज़ायरीन महफिल का कहना था अल्लाह ताला साहबजादा ताहिर हुसैन शाह बुखारी के इस मिशन में मज़ीद तक़वियत बख्शे और महफिल का ये सिलसिला चलता रहे। खानवान से आपको खबर दें कि मूसलाधार बारिश के बाद शहर में मक्खियों और जहरीले मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई है, जिससे इंसानों और जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियां लाहक हो गईं, जिसको मद्देनजर रखते हुए सियासी समाजी रहनुमा डॉक्टर निसार अहमद अब्बासी की कोशिश और DHO नुशैर अफरोज़ के खुसूसी ताउन से समाजी रहनुमा ज़मींदार अब्दुल रऊफ़ कोंदर की क़यादत में खानवान शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में, जिनमें कोंदर मोहल्ला, चन्ना मोहल्ला, एक्सचेंज मोहल्ला, गनी मोहल्ला, ज़ुहैब कॉलोनी और दीगर मोहल्लों समेत गलियों और घरों में मच्छर मार स्प्रे किया गया, जबकि मसाजिद, स्कूलों और पालतू जानवरों और मवेशियों पर भी स्प्रे किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएंगे कोटद्दू के इलाके दायरा दीन पनाह में मोटरसाइकिल और मुसाफिर बस के मबैन खौफनाक तसादुम पेश आया। हादसे के नतीजे में एक शख्स जहाँ भाग हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और दायरा दीन पनाह पुलिस मौके पर पहुँच गई और डेड बॉडी को RIC अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ भाग होने वाले की शिनाख्त 30 साल आसिफ के नाम से हुई, जो कि दायरा दीन पनाह का रिहायशी था।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद मलक की हदायत पर चनियोट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। जाहद उर्फ जाहदू मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 9 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद करके मालकान के हवाले कर दिए गए। मुलजमान में जाहिद उर्फ जाहदू, नवाज इब्रार शामिल हैं। मुलजमान का ताल्लुक चनियोट हाफिजाबाद से है। मुलजमान शहरी इलाकों से रेकी करके मोटरसाइकिल चोरी करते थे। SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर जफर इकबाल ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की। DPO का कहना है लोगों की जान माल की हिफाजत अवलीन तरजीह। जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। शेखोपुरा में थाना हाउसिंग कॉलोनी SHO और उनकी टीम की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक ही माह में दूसरा बड़ा डकैत गैंग गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा इरफान खान दुरानी से। जी DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार की हिदायत पर SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी बिशारत गुज्जर और इनकी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग मुबारक वल्द लाल, फैसल वल्द अनवर, मजहर वल्द यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्ज़े से पिस्टल 30 बोर बमा लोडशुदा, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन, असला आतशी और छीनी हुई लाखों रुपए नकदी रकम बरामद की। ये डकैत गैंग काफ़ी अरसे से पुलिस को मतलूब था। ये राहज़नी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस थे। SHO बिशारत गुज्जर का कहना था कि हाउसिंग कॉलोनी के इलाके से जराइम का खात्मा करना और इलाके को अमन का गहवारा बनाना मेरा मिशन है। जी सजावल में GOC हैदराबाद मेजर जनरल दिलावर खान ने सजावल ज़िला का दौरा करके रिलीफ के काम का जायज़ा लिया। मुतासरीन से भी मिले और फ्रांस से आने वाले डॉक्टर्स से भी मुलाकात की। पाक अफवाज इस मुश्किल घड़ी में कौम के शाना बशाना खड़ी हैं। GOC हैदराबाद मेजर जनरल दिलावर खान की बातचीत, कहा कि कोशिश है कि पहली फेज़ में सारी जानें बचाई जाए, लोगों की कुछ मदद हो जाए, आगे बेहतरी की उम्मीद है। बिजनेस फोरम टंडूजाम नवाड़ बाजार यूनिट नंबर 1 के दुकानदारों की शिकायत पर हैदराबाद बिजनेस फोरम टंडूजाम के सदर पप्पू राजपूत, यूनिट नंबर 1 के चेयरमैन नवाब इफ्तिखार ने बाजार का दौरा किया। दुकानदारों ने सिंधी अजरक और फूलों के हार बनाकर उनका इस्तकबाल किया। दुकानदारों ने अपनी मरकजी ओहदेदारान से सख्त नाराज़गी का इजहार किया। 15 दिन से 200 दुकानों से ज़्यादा गंदे पानी की वजह से बंद है, जो कि म्यूनसिपल कमेटी टंडूजाम और पब्लिक हेल्थ के ठेकेदारों के झगड़े की वजह से 1 से 1.5 करोड़ का दुकानदारों को नुकसान हो गया है, जिस पर मरकजी सदर पप्पू राजपूत ने सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध जनाब शर्जील इनाम अहमद साहिब से फ़ोन पर रब्ता किया और दुकानदारों की म्यूनसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ के ठेकेदारों की सख्त शिकायत और नाराज़गी से आगाह किया। शेखुपुरा थाना हाउसिंग कॉलोनी की बेहतरीन कार्रवाई। सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पर शरीफ घरानों की लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला ब्लैकमेलर गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा फैसल मुख्तार की हिदायत पर थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने फेसबुक से शरीफ घरानों की लड़कियों की तस्वीर निकाल कर ब्लैकमेल करने वाले ब्लैकमेलर हाशिम सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। हाशिम सुल्तान, जो कि सोशल मीडिया पर फेसबुक वगैरह से शरीफ घरानों की लड़कियों की तस्वीर अपने मोबाइल में सेव करके इनको ब्लैकमेल करके इनके साथ राब्ते कायम करता था और बताखोरी के लिए धमकियां देकर ब्लैकमेलिंग करता था कि तस्वीर वगैरह वायरल कर दूंगा। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने जदीद तर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ब्लैकमेलर हाशिम सुल्तान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी थाना हवेली लखा के हुदूद में 40 लाख रुपए की डकैती की वारदात। पुलिस चौकी हेड सुलेमान से 1 किलोमीटर के फासले पर 6 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने रोड ब्लॉक करके व्यापारियों से बड़ा ट्रक रोककर 40 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। थाना हवेली लखा की हुदूद में रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई वारदातों ने इलाकों में खौफ और हरास पैदा कर रखा है। शहरी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाक वतन के थाना खलियाना की हदूद में डकैती की 2 वारदातें करके भागने वाले 3 डाकू देहातियों के हत्थे चढ़ गए। इलाका मकीनों ने मुक्कों और थप्पड़ों से डाकुओं की खूब पिटाई की। फुटेज मंजर आम पर आ गई। तीनों डाकू थाना खलियाना की हदूद में लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस पकड़ने में नाकाम हुई तो अहले इलाका ने ताकुब करके डाकुओं को पकड़ लिया। इलाका मकीनों ने मुक्कों और थप्पड़ों से तीनों डाकुओं की खूब पिटाई की। डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद देहातियों ने असला समेत पुलिस की तहवील में दे दिया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
अब रुख करेंगे चीचा वतनी का, जहां साहिवाल पुलिस की बरवक्त कार्रवाई सामने आई है। एसएचओ गाजियाबाद चीचा वतनी सब इंस्पेक्टर उमर दराज ने 9 साला इकरा की शादी की तकरीब रुकवा दी। 9 साला इकरा की 30 साला शख्स वकील से शादी की जा रही थी, जो कि समाजी और सिनफी जुल्म के साथ मुल्की कवानीन की भी खिलाफ वर्जी थी। एसएचओ गाजियाबाद ने इतला मौसूल होने पर फौरी कार्रवाई करते हुए शादी के मुंतजमीन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ठट्टा से आपको खबर दें कि ठट्टा में सख्त गर्मी और हब्स के बायस डायरिया और पेट की मुख्तलिफ बीमारियों ने सैकड़ों अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। मरीजों की बड़ी तादाद सिविल अस्पताल मकली में मुंतकिल। अस्पताल में अद्वियात की कमी बरकरार। मरीज महंगे इंजेक्शन और दीगर अद्वियात बाहर के मेडिकल स्टोरों से खरीदने पर मजबूर हैं। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।